Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is your host Munib. Welcome to another video. In this video, I will be covering introduction to database and its types, which are SQL and NoSQL. We have other types, but specifically I will be focusing on SQL versus NoSQL database types. Okay. So let's start with the table of content, or you could say agenda that we'll be covering in this video. So what actually database is, why do we need database, types of databases, what is SQL and NoSQL database, and what are the key differences between them. So, but before covering database, let's discuss what actually data and information is. Data is since childhood and since school life, we are memorizing the statement that data is a collection of raw facts and figures, and it doesn't provide you a detailed insights or any information. Okay, for example, you have a list of temperature like 25 degrees centigrade, 28, 26, and 29, but you don't know what was the highest temperature and what was the average temperature if somebody asks you. Okay, another example you could consider is like we have a set of customer names and their purchase amounts, but we don't know how much money or how much money a specific person has spent to buy a product. Okay, so information is those data which are processed and organized, and it will give you a proper context that makes it a meaningful information and meaningful that converts the data into meaningful and useful context. Okay, so that's the concept of information. Okay, so for example, I have written some points right here, like the average temperature for the day was 27 degrees centigrade. Okay, and the highest temperature was 29 centigrade. Okay, so this is the proper, you could say, a meaningful or useful statement, or that you could consider is as example of information. Okay, it provides you a detailed information like the temperature average was 27 degrees centigrade and the highest temperature was 29 degrees centigrade if we talk about that day. Okay, and the total sales, if we talk about the that Sarah has spent the most of the money, and total sales were $50. So Sarah has spent most of the money to buy a product or list of products, and these total sales were $50. Okay, so that's the concept of information. If we want to keep and store the data and information in computer system, so we have a concept which we call as database. Okay, so database is an organized collection of data that is stored and managed electronically, usually inside a computer system. Okay, so database also helps you to store, search, sort, and update large amount of information easily and safely. Okay, so that's the concept of database. There is a concept of software that we can manage database. Is called database management system, or we could call it as DBMS short form. Okay, so DBMS is basically a software where we can use and manage the databases. Okay, so so if database management system and applications are interconnected to each other, which we call it as our database system. Okay, if you talk about the use cases of databases, so databases are used in many areas like businesses and government sector in order to keep and store the citizens' records. Like in Pakistan, we have provinces like Sindh, Punjab, and KPK. And if you want to store data, how much percentage of different age group, like from 18 to 27, youngsters and senior aged persons ages, if you want to record this type of records, so we can use database as well. Okay, what are the basic set of operation that are widely used in database? Okay, so we have basically four combination of letters. C stands for create, read, R for read, U for update, and D for delete. Okay, so these are the basic set of operation which are used and that we perform on data in a database. Okay. Okay, so every database system supports CRUD operation to manage the stored information, and we have another concept of database which we call as asset. This is not the asset जिसको हम लोग तेजाब समझते हैं, ऐसा वाला asset नहीं है. वो वाला asset है जो कि database में जो use होता है. A stands for atomicity, C for consistency, I for isolation, and D for durability. Okay, and one more thing I forgot to tell you that in database, the database organize the data in the form of tables, and table basically consists of rows and columns combination, just like you guys have seen in Excel sheet. Okay, for easy storage purpose and fast retrieval purpose. Okay, so database में हमारे पास table की form में हम अपना data store कर होते हैं, and for using the programming language, it provides you a special programming language called as SQL. SQL का जो full form है वो है structured query language. Okay, जो कि बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है डिफरेंट आपके डेटाबेस इंजन या डेटाबेस सॉफ्टवेयर में. ठीक है, एटॉमिसिटी की अगर बात करें तो एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आइदर आपका या तो ट्रांजेक्शन फुल होगा, कंप्लीट होगा, या नहीं होगा. ठीक है, इसकी मिसाल आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक है, तो एक अकाउंट से पैसे आपके डेबिट होंगे और दूसरे अकाउंट से आपके पैसे क्रेडिट होंगे. ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो है वो फेल हो जाता है, तो जाहिर है आपकी ट्रांजेक्शन फुलफिल पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, एंड देन आपका जो भी ट्रांजेक्शन है वापस से रोल बैक हो जाएगा. ठीक है, तो एटॉमिसिटी का ये कॉन्सेप्ट है. कंसिस्टेंसी का की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपके वैलिडेशन के लिए यूज होता है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं इसी एग्जांपल की कि आपके एक अकाउंट से पैसे गए और दूसरे अकाउंट में पैसे आए. ठीक है, तो अकाउंट से पैसे जाने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट जो बनती है, क्या वही डाटा आपके पास शो हो रहा है? तो यही चीज़ हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, जो कि बेसिकली प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपका जो डेटाबेस है वो क्या वो वैलिड स्टेट पर है या नहीं. ठीक है,
इसकी एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया है कि अगर आप सुपरमार्केट खाते हैं, तो सुपरमार्केट में जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो उस शायद उसकी कोई प्राइस मेंशन है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई आप प्रोडक्ट लेने जाएँ, उसकी प्राइस मेंशन ना हो, ठीक है? तो यही कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी का। इफ यू टॉक अबाउट दी आइसोलेशन ट्रांज़ैक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो भी ट्रांज़ैक्शन हो रही है, ट्रांज़ैक्शन का एक समराइज़ फॉर्म में मैं बताऊँ सिंपल वर्ड्स में, कि आपका जो भी डाटा प्रोसेस हो रहा होता है या आपकी ऑप्टिमाइज़ेशन चल रही है या आपके एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है? तो इसी को हम लोग ट्रांज़ैक्शन बोल रहे होते हैं डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में। अगर आपके मल्टीपल ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं, तो वो ट्रांज़ैक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है? वो आइसोलेटेड एनवायरनमेंट पे काम कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मतलब 2 बंदे फ्लाइट बुक करवा रहे हैं फर्स्ट बिज़नेस क्लास की सीट पर, ठीक है? तो ज़ाहिर है और वहाँ पे एक ही सीट अलाउ है, ठीक है? तो उसमें से ज़ाहिर है एक ही बंदा बैठ सकता है और दूसरे बंदे की जो एप्लीकेशन है, वो रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है? तो आइसोलेशन एनवायरनमेंट में ये होता है कि आपकी जो भी ट्रांज़ैक्शन है या जो भी आपका प्रोसेस है, वो पैरेलल चल रहा होता है, तो उससे दूसरे आपके जो सर्विसेज़ हैं या जो भी आपके डेटाबेस में चीज़ें चल रही हैं या परफ़ॉर्मेंस चल रही है, तो उसपे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ड्यूरेबिलिटी आपके परफॉर्मेंस आपके सिस्टम भी ये प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी किसी फाइल में काम कर रहे थे और आपने वो फाइल सेव किया है, अगर आप अपने सिस्टम को दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं या टर्न ऑन करते हैं, तो आपको वही फाइल उसी स्टेट में मिलेगी जिस स्टेट पे आप छोड़ के गए थे, ठीक है? तो सेम यही कॉन्सेप्ट आपको डेटाबेस प्रोवाइड करता है कि जिस डेटाबेस में आप काम कर रहे थे, डेटाबेस जिस स्टेट पे था, उसी स्टेट पे आपको वापस से मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, डेटाबेस की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है? डेटाबेस की ज़रूरत इसलिए होती है कि आपका जो बेसिकली सबसे पहला जो स्टेप है वो है ऑर्गेनाइज़्ड डाटा स्टोरेज, ठीक है? आपको ये ऑर्गेनाइज़्ड डाटा स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है? आप अपने डाटा को स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? और जो कि हेल्पफुल रहता है आपको अगर आपको कोई डाटा उसमें से फाइंड आउट करना है या मैनेज करना है, ठीक है? रिट्रीवल की बात करें तो ये आपको फास्ट या ईज़ी डाटा रिट्रीवल प्रोवाइड करता है। आप क्विकली कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं या आप अपने डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं विदिन मिलीसेकंड और सेकंड, ओके? और एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट की बात करें तो ये बेसिकली आपको हेल्प कर रहा होता है कि आप अपने एक्जिस्टिंग डेटाबेस में आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं यूजिंग क्रूड ऑपरेशन, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है? एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स डाटा सिक्योरिटी। बेसिकली डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मैकेनिज्म है, लाइक यूजिंग पासवर्ड्स है, एन्क्रिप्शन है एंड यूजर एक्सेस कंट्रोल है। एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है? हमारे पास मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डाटा हो, उसको भी मैनेज करने के लिए हम लोग डेटाबेस यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? डाटा कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी की बात करें तो इसमें आप रूल्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं कि आपका जो डाटा है वो बिल्कुल क्लीन हो, करेक्ट हो, रिलायबल हो और डाटा जो है वो आपका कंसिस्टेंट रहे, उसमें वैलिडेट रहे, ठीक है? मल्टी यूज़र एक्सेस भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक डेटाबेस में 5 या 6 यूज़र्स को एक्सेस देना चाह रहे हैं, ठीक है? तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है? और बैकअप एंड रिकवरी की बात करें तो बैकअप रिकवरी का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें डेटाबेस ही आपको अलाउ करता है कि आप ऑटोमेटिक या मैनुअल बैकअप लेके और डाटा रिकवरी भी कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई भी फेलियर अगर होता है सॉफ्टवेयर एंड से या हार्डवेयर एंड से। और डिसीजन मेकिंग के लिए भी ये आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉर एग्जांपल ये पता लगे डेटाबेस के रिकॉर्ड से आप एनालाइज़ कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल आपके जो स्टॉक मार्केट है या जो मनी मार्केट है, उसमें फॉर एग्जांपल कोई भी फ्लक्चुएशन आ रही है आपकी प्राइस में, उसके बैकएंड में ज़ाहिर है डेटाबेस के थ्रू आपका सारा डाटा या रिकॉर्ड जो है वो सेव हो रहा होता है। तो उसके हिसाब से आप जो है डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि इन फ्यूचर क्या प्लेटफॉर्म पे या किस जो आप यानी कि कैश फंड है या हमारे पास मल्टीपल जो टाइप्स हैं, क्या उन मनी मार्केट में या स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये इस तरह की आप एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। By looking carefully and analyzing your database, your data, you can actually make better decision making. Okay, and it also provides integration with applications like a database can work with different software application like websites, mobile application, and business tools. Business tools में हमारे पास क्या कहते हैं पावर बी आई बेस एप्लीकेशन आ जाती है, ठीक है? इसके अलावा और भी बिजनेस के जो टूल्स है वो यूज़ होते हैं और उसके बैकएंड में हमारे पास डेटाबेस कनेक्ट हुआ होता है। अच्छा, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डेटाबेस की तो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स हैं, लेकिन इसमें हम लोग जो है रिलेशनल डेटाबेस जिसको हम लोग एसक्यूएल डेटाबेस भी बोलते हैं और नोएसक्यूएल डेटाबेस भी हम लोग कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? ये भी हम लोग थ्योरेटिकल वे में कवर कर लें, लेकिन इंशाल्लाह इन अपकमिंग वीडियोस आई विल डेफिनिटली कवर द हैंड्स ऑन लैब एज़ वेल। और बाकी आप टाइप देख सकते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस भी है, क्लाउड डेटाबेस भी है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस भी है और ग्राफ डेटाबेस है, ठीक है? अच्छा, रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो यहाँ पे जो माईएसक्यूएल है, पोस्टग्रेसक्यूएल ये बेसिकली डी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है? इनमें से जो प्रोप्राइटरी है वो है माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल और अमेज़न का अपना है एडब्ल्यूएस का जो कि अमेज़न अरोरा के नाम से है और ओरेकल का अपना है ओरेकल डेटाबेस के नाम से, ठीक है? इसके अलावा जो बाकी ओपन सोर्सेज़ में माइस्क्ल है, पोस्टग्रेसक्यूएल है और मारियाडीबी है, ठीक है? तो ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, जो कि बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस की बात करें, जो आपका जो डाटा है वो टेबल फॉर्म में टेबल्स कलेक्शन होता है आपका रॉस एंड कॉलम्स का, जिसको हम लोग स्कीमा भी बोलते हैं, ठीक है? बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, सुना होगा वर्ड स्कीमा, तो स्कीमा के अंदर हमारे डाटा स्टोर हो रहे होते हैं डेटाबेस के अंदर। अगर हम बात करें नोएसक्यूएल की, तो नोएसक्यूएल के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ आती है। लाइक वी हैव की वैल्यू पेयर है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है या डॉक्यूमेंट बेस्ड भी बोला जाता है बाज़ औक़ात। इसके अलावा कॉलम ओरिएंटेड है, ग्राफ बेस्ड और टाइम सीरीज़ है। अच्छा, जो एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, इन टूल्स के नाम आप लोगों ने शायद सुने होंगे। उनमें से मेजॉरिटी जो टूल्स हैं वो आपने शायद यूज़ भी किए होंगे अपने एक्चुअल एनवायरनमेंट में, शायद चाहे डेव एनवायरनमेंट हो, प्रोड एनवायरनमेंट हो या टेस्टिंग या स्टेजिंग एनवायरनमेंट की बात करें, तो वहाँ पे आप लोगों ने ज़रूर यूज़ किया होगा। की वैल्यू पेयर की बात करें तो उसमें हमारे पास रेडिस है, मेमकैशे है और अमेज़न डायनामोडीबी है। अच्छा, अमेज़न डायनामोडीबी को हो सकता है इन फ्यूचर में कवर कराऊँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड की बात करें तो उसमें हमारे पास मोंगोडीबी है, काउचडीबी है और फायरबेस का फायरस्टोर है। और कॉलम की बात करें तो अपाची कैसेंड्रा है, एचबेस है, गूगल का बिग टेबल है
और स्काईलाइट भी है। ग्राफ बेस की बात करें तो इसमें हमारे पास अमेजोन का अपना जो है नेपट्यून है और नियो4 जो है। टाइम सीरीज की बात करें तो इसमें हमारे पास इलास्टिक सर्च आता है, प्रोमीथियस आता है, टाइम स्केल आता है और इन्फ्लक्स भी आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इन कैटेगरीज की, अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो की वैल्यू डेटाबेस में क्या होता है, आपका जो डाटा है वो स्टोर हो रहा होता है की वैल्यू पेयर में। की को हम लोग नेम बोलते हैं, बाजू का कॉलम वाइज आपने देखा होगा। तो और वैल्यू जो होती है हमारे पास वो डाटा फॉर्म में हो रही होती है। ठीक है। डॉक्यूमेंट बेस की बात करें तो आपका जो भी डाटा है वो स्टोर हो रहा होता है डॉक्यूमेंट फॉर्म में। यूजुअली आप बात करें जेसन फॉर्मेट पे, एक्सएमएल फॉर्मेट में। ठीक है। कॉलम ओरिएंटेड की बात करें तो जो आपका डाटा है वो कॉलम्स में स्टोर हो रहा होता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लार्ज डाटा सेट्स होती है उसके लिए। और ग्राफ इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास एक रिलेशनशिप कायम होता है या बनता है नोड्स और एजेस के दरमियान। ठीक है। नोड्स को हम लोग एंटिटीज भी बोल रहे होते हैं और एजेस को हम लोग रिलेशनशिप भी बोलते हैं बाजू का। इस तरह की जो डेटाबेस है ग्राफ बेस, ये यूजफुल है आपके एप्लीकेशन लाइक सोशल मीडिया हो या आपके नेटवर्क्स वगैरह के या आपके रिकमेंडेशन इंजन में यूज होता है। और टाइम सीरीज की बात करें तो बेसिकली आपका जो डाटा है वो स्टोर हो रहा होता है आपके टाइम स्टैम्प्स पे। ठीक है। जो नियर रियल टाइम पे अगर आप बात करें उसकी एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फाइनेंशियल डाटा है, आप स्टॉक्स की प्राइस देख रहे हैं वक्तन फवक्तन, स्टॉक्स की प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आ रही है, तो बेसिकली नियर रियल टाइम बेसिस पे वो डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यू कुड कंसिडर दिस एज एन एग्जांपल ऑफ टाइम सीरीज डेटाबेस। If we talk about the key differences between SQL versus NoSQL, we have multiple features like data structure, schema, scalability, and query language. Okay, so if you talk about the data structure, data stored in tables with rows and columns, whereas in NoSQL हमारे पास जो डाटा है वो स्टोर हो रहा होता है की वैल्यू पेयर में, डॉक्यूमेंट में या ग्राफ फॉर्म में। ठीक है। स्कीमा की अगर हम बात करें तो स्कीमा में हमारे पास जो स्कीमा होता है वो फिक्स होता है। ये हमें शुरू में डिफाइन करना होता है कि हमारे पास जो टेबल्स है लाइक रॉज एंड कॉलम्स वो कितनी होनी चाहिए, वो शुरू में हमें फिक्स डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है। इसमें चेंजेस आप कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें अलग से टेबल बनाने की नीड होगी, फिर उसको हमें ज्वाइन कराना पड़ेगा। ठीक है। Whereas in dynamic schema, like in NoSQL we have dynamic schema and fields कैन वेरी फ्रॉम रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड। हम लोग मल्टीपल फील्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक टाइम पे हमने 2 फील्ड्स बनाई है, कल को हमें 2 फील्ड की और नीड पड़ी तो हम 2 फील्ड एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं उसी टेबल के अंदर। तो जैसे जैसे वक्त के हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट भरेगी उस हिसाब से हमारे जो है फील्ड्स भी भरेंगी, उन फील्ड्स के अंदर हमारे डाटा स्टोर हो रहे होंगे। स्केलेबिलिटी की बात करें सो इन एसक्यूएल वी हैव वर्टिकल स्केलिंग, जिसमें हम लोग सर्वर का जो साइज है या जो रैम वगैरह है वो हम लोग बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है। इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। जबकि NoSQL की बात करें तो इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ये प्रोवाइड करता है। इसमें हम लोग मल्टीपल सर्वर्स नोड्स वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और क्यूरी लैंग्वेज का भी डिफरेंस है कि जहाँ पे आप एसक्यूएल की जो क्यूरी यूज़ होती है वहाँ पे NoSQL की भी तकरीबन क्यूरी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें सिंटैक्स का डिफरेंस है। ठीक है। सो दीज आर दी की डिफरेंस विद डायग्राम। और इनकी यूज़ केस ये है कि आपका जो वेबसाइट है या मोबाइल एप्लीकेशन है या इंटरप्राइज लेवल जो आपकी एप्लीकेशन है, उस केस में आप एसक्यूएल भी यूज़ कर सकते हैं, NoSQL भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आजकल चूँकि NoSQL का यूज़ केस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये गेमिंग में भी यूज़ हो रहा है, सोशल मीडिया में भी यूज़ हो रहा है, आपके आईओटी में भी यूज़ हो रहा है। अच्छा, एसक्यूएल की बात करें तो ये हमारे पास ये टेबल है जिसके अंदर हमारे पास टेबल के अंदर रॉज एंड कॉलम्स हैं। ठीक है। इन टेबल्स को हम लोग आपस में ज्वाइन करा सकते हैं। जबकि हमारे पास जो NoSQL है मैं बता चुका हूँ की वैल्यू पेयर में हमारे पास डाटा स्टोर हो रहा होता है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास जेसन है या एक्सएमएल है और कॉलम में हमारे पास कॉलम फॉर्म में हमारे पास डाटा स्टोर हो रहा होता है। So in upcoming videos, I will definitely focus on creating and covering database related videos using Amazon RDS जो कि SQL सर्वर है। और जो हमारा NoSQL है उसके लिए हम लोग DynamoDB यूज़ करेंगे। ओके। Inshallah, I will come up with the amazing ideas and topics related to database in future. So stay tuned and thank you so much and take care of yourself and your loved ones. Allah Hafiz.